Hello, everyone. This is Shamaz from Edfolio International Education Council. It's good to be back. And in this series of podcasts today, we have a very special guest. He is one of my, very old colleagues. Not old because we have been together for a very long time. I know him personally. He's a great guy. Sayyid Muhammad Azan, a teacher of English language and French, and he has taught so many people that once we were sitting in my office and he saw a poster or a print behind me. It was a screen, and he was like, "In those students ko maine padhaya hai. Do you know this?" So I am when something like this happens, it makes me feel very good, right? So he's an amazing guy, and I am sure you'd love it. I'll give him a few minutes to introduce himself. Thank you, Azan, for being here. Please, sir, if you can give your introduction. We are informal, of course. We know each other for a very long time, but the audience does not know it. So let's keep it light and let's keep it formal. Thank you, sir. Over to you. You're welcome, Mr. Shumaz. I'm extremely honored for sitting in front of you, mashallah, and to have a podcast with you for a long time. Yes, we have been planning it for a long time. And today, after a bundle of burden of the students and English language, finally today we got the chance to have some chit and chat between you. So I'm so welcome and you're so welcome. And we're going to have some wonderful time for our audience. And for surely we're going to have a ball today in this podcast for all the students and the viewers who are watching us. Yes, Mr. Shumaz. As Biden says, inshallah. So, anyways, sir, थोड़ा सा मुझे ये बताइए for the audience, because I know it, but the audience does not. मुझे ये जानना है आपकी ये जर्नी शुरू कहाँ से, बिकॉज हम लोग एक आपस में एक म्यूचुअल बॉन्ड शेयर करते हैं, बिकॉज हमारी जर्नी काफी सिमिलर रही है. बट आई वांट टू नो फॉर माय ऑडियंस, आप थोड़ा सा अगर ब्रीफली इलैबोरेट करें, बिकॉज आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी मोटिवेटिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस टू नो. For sure. So it all started in 2007 and 2008. Yes, when there was a lacking of income. Yes, when there was lacking of money in my life. So yes, a fire burnt in myself. एक आग उठी, एक आग जली कि yes, a person who can do big things, who has big dreams in his mind, and he has to do something in his life. So I chose English language career to make my name and to make my fortune. And yet I am here in front of you after teaching 14 years English language, IELTS, and a lot of students I have taught in this career from English language and IELTS. A lot of students, they have gone to abroad to different countries like Australia, Canada, Germany, फिनलैंड, आयरलैंड. आई एम श्योर कि वो मेरे सारे स्टूडेंट्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे शुमास, और जो मेरी बातों को समझ रहे होंगे, फाइनली दे विल बी क्वाइट हैप्पी टू सी मी कि सर हमने आपकी शॉर्ट वीडियोस तो बहुत देखी हैं, हमने आपकी क्लास वीडियोस तो बहुत देखी हैं, बट इट इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर वाचिंग सर अजान इन अ पॉडकास्ट. सो आई नो दैट दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर माय स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न इंग्लिश इन द फ्यूचर, जो एक राह तलाश कर रहे हैं कि हम अंग्रेजी कैसे सीखें, तो उनके लिए ये पॉडकास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं शुमा, सो दैट ऑल स्टार्टेड इन 2007 एंड 2088 व्हेन आई वाज ओनली इंटर. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ आउट ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से एक लड़का जो घर से बाहर निकला इस इंटेंशन के साथ कि भाई अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोल लेता है ये लड़का, तो शायद ये पढ़ाने भी लग जाए, तो उसने अपने कैरियर का स्टार्ट किया एज अ कॉन्वर्सेशनिस्ट. फॉर श्योर आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन द इंस्टीट्यूट नेम्स और द पीपल हु आई वर्क फॉर. आई रियली डोंट वांट टू मेंशन दैट. लेकिन एक कैरियर का आगाज 200 रुपए पर वीक से हुआ. शुमाज, ये एक ऐसा कैरियर था कि जिसमें एक अजान नामी लड़का, 17-18 साल नामी लड़का, गुलबर्ग की पट्टी पे जहां लाइन से जाइंट्स कोचिंग सेंटर्स लोकेटेड होते थे, और वहां वो एज अ कॉन्वर्सेशनलिस्ट हायर हुआ कि जो बैठ के बच्चों के साथ इंग्लिश बोलेगा. वहां से ये सफर स्टार्ट हुआ और इसको कैरी डाउन किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. वन ऑफ द टॉप ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कराची आई हैव वर्कड विद, और उन टीचर्स के साथ काम करके, उन टीचर्स के साथ सीख के, अपनी तालीम को बढ़ा के, उस इंटरमीडिएट लड़का जो पढ़ाना स्टार्ट हुआ, फिर उसने ग्रेजुएशन किया, फिर उसने एमए लिंग्विस्टिक और लिटरेचर किया,
फिर उसने फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर उबूर हासिल किया. Yes, my dear viewers, I am a person in the Karachi who teach English language, IELTS, and a bit of French can also be added just like this. Bonjour. Bonjour means hi. Kama talevuf. So yes, I'm a kind of person who can teach you English language, who can make your basics of English language from scratch. And I'm not that kind of teacher, my dear viewers. शुमाज मैं उस तरीके के टीचर्स में शुमार कभी नहीं हुआ जो उर्दू की बेस पे अंग्रेजी सिखाने में अबूर हासिल रखते हैं. Yes, there was a time, there was a era in our Karachi when teachers used to teach English in Urdu, just like this: चुका, चुकी, था, थी, लिया, लिए. एंड दे यूज्ड टू टीच इन सच अ वे कि पहले एक उर्दू का जुमला लिखा जाएगा और उसके बाद अंग्रेजी बनाएगी. सो माय डियर व्यूअर्स, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट एंड इट इज नॉट द मोस्ट ऑथेंटिक वे टू लर्न एनी लैंग्वेज. भाई, आप ट्रांसलेशन फैक्टर से, आप तर्जुमे फैक्टर से कोई भी जबान नहीं सीख सकते. शुमान, दैट्स व्हाट आई बिलीव. ये आई थिंक यही रीजन था कि हमारा एक बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग बना, बिकॉज यूजुअली यहाँ पे देखे काफी सारे पढ़ाते बहुत लोग हैं, बट ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से आई थॉट कि यार दिस इज द गाय हु इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. और नो ऑफेंस टू अदर टीचर्स, हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच होती है, बट एक होता है कि माइंड मैच करना. अच्छा, मैं इसी को कंटिन्यू रखते हुए एक बात करना चाहूंगा. आपके लिए भी बता दूं, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग विद माय वाइफ टू फ्रांस, उस वक्त मैंने इनसे थोड़ा सर्विसेज वगैरह ली. मैंने कहा सर थोड़ा सा मुझे जरा थोड़ा एक आध हफ्ता दे दे निकाल के. मैं नहीं चाहता, बिकॉज आई एम अ लैंग्वेज क्रेजी पर्सन टू. सो मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि वहां पे 2-3 चीजें हम जो है मिस आउट कर दें. तो वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जस्ट फॉर द थिंग. मेरा सवाल ये है सर, कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन, अक्सर और बेशतर स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हम बाहर जा रहे हैं, हम आइल्स कर लेंगे तो इट्स अ रिक्वायरमेंट, वो तो पूरी हो जाएगी जैसे जैसे करके. वो ये चीज पे फोकस नहीं कर पाते कि हम वहां जा रहे हैं, अगर हमें जबान नहीं आएगी, कॉन्वर्सेशन नहीं आएगी, अगर भले गलत बोले डजंट मैटर, बट अगर हमें नहीं आएगी या हम प्रॉब्लम फेस करेंगे तो इसका नुकसान होगा हमें कम्युनिकेशन के हवाले से, प्रोफेशनल लाइफ में, क्लासरूम में, एंड एवरीवेयर एल्स. सो थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करें. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बिकॉज मैंने काफी लोगों को ये बोलते हुए सुना है, स्टूडेंट्स जाते हैं आइल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करके, उसके बाद दे गेट बैक टू द टीचर कि अभी हम बैक स्टेज भी जब बात कर रहे थे बिहाइंड द सीन, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि एक स्टूडेंट का आपने बताया था, तो ऐसा कभी किसी के साथ हुआ हो आपको? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया था, इसलिए मैं ऑडियंस के लिए भी ये चीज बोल. Shuman, it really happens, and you have asked an interesting question. Shuman, first of all, I would like to start from the communication. Yes, English is the mode of communication in the whole world. Yes, there are many people out there that they are good at communication, but when it comes on English language, so their hands shakes, they get shiver, they get out of words because they do not have that particular words to portray their communication, to portray the point of view in front of the people. ऐसे बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं जो कि मैच्योर हैं, जो कि कम्युनिकेटिव हैं, बट व्हेन इट कम्स ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हेन इट कम्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, तो उनके हाथ पांव कांप जाते हैं. शुमास, वो ये सोचते हैं कि यार उर्दू में तो मैं एक अपने आप को चीता समझता हूं, मैं अपने काम का बादशाह हूं और मेरे आगे कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता. लेकिन इन द सेम कम्युनिकेशन, इफ दे हैव टू डू द कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, सो दे लैक असाइड, उनकी आंखें झुक जाती हैं और उनकी जबान लड़खड़ा जाती है. तो सबसे पहले हमें ये समझना है शुमास कि हाउ कैन वी मेक एनी person a good communicator. According to me, in my perspective, in my conviction, what I believe, कि अगर आप एक अच्छे mature person हैं जिसको अपना मौकिफ लोगों के सामने रखना आता है, तो आपके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज एक गार्निशिंग का काम करेगी. स्टूडेंट्स, let me clear one thing about it, that if you are a good communicator in Urdu, so it means that you're halfway done. You do not have to do more. You just have to garnish your communication in English language. And what English language can do, that English language can put you from here to here. Yes, it happens in our society. शुमास, एक मेरे साथ क्या तजुर्बा हुआ कि एक ऐसा शख्स जो कि तालीम में कम है, जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट बेस्ड है, एंड ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड ही इज मल्टी मिलियनेयर बिकॉज ही ओन्स अ कॉल सेंटर एंड ही वर्क्स इन अ कॉल सेंटर. और मुझे लड़का आगे क्या बोलता है दोस्तों, वो मुझे ये बोलता है शुमास कि सर मैं मैट्रिक ड्रॉप आउट हूँ और मेरा कॉल सेंटर का अपना बिजनेस है, मैंने स्टार्ट एज अ कॉल सेंटर एजेंट किया.
उस कॉल सेंटर के मैनेजर ने मुझे रिबफ करके एक दिन अपने कॉल सेंटर से निकाल दिया और मुझे जुनून चढ़ा, मेरे जिस्म में एक आग लगी और मैंने बोला कि अब मैं ये काम खुद करूंगा। यस, ही इज अर्निंग इन मिलियनियर बट ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। सुबह मेरे सामने और मेरे बराबर में रोज एज एन इंडिविजुअल इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट ही स्टडीज फ्रॉम मी। मेरे पास साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन इन कराची हु डू नॉट ओनली टीच इन द क्लासेस। यस, देयर आर बंडल ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन कराची हु विल गेट यू कि आए हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करें, आए हम आपका असेसमेंट टेस्ट लें और 15-20 लड़के लड़कियां नुमा क्लास में आपको बिठा दिया जाएगा। बट फॉर मी देयर आर सम प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, देयर आर सम इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स हु आर मूविंग टू, हु आर इंटेंडिंग टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड, फिनलैंड, एंड दे टेल मी कि सर वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि हम और इदारों की तरह हम बैग टांग के आए शुमास और हम आपके कोचिंग में बैठे। सर अजान आप हो और मैं हूं और फिर हम अपनी क्लास ले रहे हो तो उसमें बात करने का मजा है, उसमें पढ़ने का मजा है। तो वही मेरा स्टूडेंट, एक कॉल सेंटर का सीईओ, ही कम्स इन अ बिग कार टू माय इंस्टीट्यूट एंड व्हाट डज ही टेल मी? ही टेल्स मी कि सर अजान मैं लाखों करोड़ों का बिजनेस करता हूं, आई अर्न इन डॉलर्स, लेकिन मैंने इंग्लिश बोलने के लिए, अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने के लिए शुमास, उसने 70-80,000 का बंदा रखा हुआ है कि भाई आई एम अ स्कूल ड्रॉप आउट, आई कांट डू दैट, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिकेशन एरर ही हैज हायर्ड अ पर्सन। तो कुछ इस किस्म के क्लाइंट्स, कुछ इस किस्म के स्टूडेंट्स जो कि अपने कैरियर के एक अच्छे पाथवे पे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन दे आर लैकिंग। सो यस, दे हैव चांस, यस दे हैव अपॉर्चुनिटी शुमा दैट दे कैन सिट with me, they can have an individual English language session and they can learn English language, right? तो कहने का मकसद व्यूअर्स और आपको समझाने का मकसद वन लाइनर में ये है कि English is not the bed of roses, it is a piece of a cake। आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप भी इंग्लिश को इस तरह से सीख सकते हैं। It does not mean what is your age, it does not mean that from which profession you are attached, you just need a will, you just need a requirement in yourself कि नहीं मुझे अंग्रेजी बोलनी है। और शुमाज में एक बात को और कनेक्ट करूं फिर हम अपने अगले सवाल की तरफ चलेंगे कि बहुत सारे लोग आजकल हमारी सोसाइटी में शुमाज अपने आप को डिग्रेड करते हैं कि हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते और अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हमारा मजाक उड़ेगा या कोई ना कोई हमारी अंग्रेजी के ऊपर हंसेगा। यहां मैं अपने व्यूअर्स, अपने स्टूडेंट से एक बात करूंगा, बच्चों, you need to understand that English is a mode of communication, English is a mode of your personality। एक ऐसा शख्स जो कि मैट्रिक है but he has a good command of English language, he can speak English, तो वो आप जैसे मास्टर्स और एमफिल से ज्यादा पैसे कमा सकता है हमारी सोसाइटी में। Why? क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों को, शुमाज आप भी ये बात जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के लोग यहाँ रखते हैं वो क्या, अरे आप इंग्लिश बोलते हैं, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, तो they put that person, they put those person over here। उन लोगों को ये इल्म नहीं है स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स के अमेरिका का एक स्कैवेंजर जो स्वीपर है भाई वो भी अंग्रेजी बोलता है। तो तुम अगर अंग्रेजी बोल रहे हो तो दैट इज नॉट द राइट थिंग एंड दैट इज नॉट द बिगेस्ट थिंग। लेकिन कराची में, इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में अंग्रेजी बोलने वालों को मिस्टर शुमाल बड़ी तरजीह दी जाती है। ये आई थिंक ये एक हमारा पूरा जो कॉन्टिनेंट है इसका एक डिलेमा है एंड इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन इंडिया हु टेल मी द सेम थिंग और ये चीज है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई प्रीटी मच एग्री टू इट। मेरा अगला सवाल सर रिलेटेड टू आईएलटीएस है क्योंकि काफी सारे, क्योंकि हम लोग इसके वी कम अक्रॉस दीस काइंड ऑफ थिंग्स रेगुलरली। मेरा सवाल ये है कि आईएलटीएस जनरली जब एक स्टूडेंट प्लान करता है या क्या करता है, लाइन ऑफ एक्शन से लेकर उसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं आके जब हम उनको बोलते हैं कि जी आपका पहला स्टेप इज आईएलटीएस इफ यू आर प्लानिंग फॉर टू फर्दर गो अहेड विद दिस प्रोसेस। उनका पहला सवाल ये होता है, सर मैं वो लिज आइल्स है, ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, कुछ यूट्यूब की वीडियोस है, मैं जी आई हैव अ pretty good background in schooling, I can speak well, I have a good academy and everything, मैं कर लूंगा ऑनलाइन क्लासेस, आपको मैं 2-3 हफ्ते में जो है ना करके लाके दे दूंगा, अब मैं I'll see some YouTube videos वगैरह। मेरा सवाल ये है कि what makes a classroom system or a tutor or a personal tutor system different or better than the online version of things where the student thinks कि वो अपना self study करके भी clear out कर सकता है?
Shumaz, what I believe that IELTS, first of all, okay, this answer is going to be 1 minute or 2 minutes, right? Let me Take your start time. from We have all the IELTS. time in the All right, world. No thank you so problem. much, Shumaz. That's so nice of you. तो viewers and Mr. Shumaz, IELTS के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो I'm going to start from the scratch for the students who are thinking to appear in IELTS. IELTS is what? International English Language Testing System, which has majorly four components: speaking, reading, listening, writing. We have two models of IELTS itself. Academic IELTS is for the students who go for the academic purpose, and general IELTS is for the students who go for the work permit and the job purpose visa. हमारे पाकिस्तान में शुमास जब भी कोई आइल्स की नियत करता है और वो इस जहनियत से बाहर आता है कि यार अब मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ, या एक माँ बाप सोचते हैं कि अब हमें अपने लड़के को, अब हमें अपनी लड़की को इंटरमीडिएट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हमें इसको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, फिनलैंड, डिफरेंट कंट्रीज की तरफ भेजना है, तो वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि राइट नाउ व्हाट इज हिज लिंग्विस्टिक लेवल, अभी उसकी लेक्सिकल रिसोर्सेज, अभी उसकी कोहेजन एंड कोहेरेंस, अभी उसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कहाँ स्टैंड बाय करते हैं. और शुमाज, ये मैंने देखा है हमारी सोसाइटी में कि a lot of the candidate, a lot of people who want to jump into the IELTS, वो सबसे पहले इसमें कंफ्यूज हैं कि IELTS तो भाई कोई बहुत ही मुश्किल टेस्ट है. आइल्स के लिए तो हमें अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलनी होगी. सो लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग टू ऑल ऑफ द पीपल कि इट इज नॉट लाइक दैट. You do not have to speak English like a white person, students. Yes, एक आइल्स ऐसी चीज नहीं है कि आप अपने आप को ये समझें कि भाई मुझे अंग्रेज की जैसे स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग करनी है. सो मैम, दिस इज नॉट द केस एक्चुअली, राइट. आइल्स में अगर आपकी एक मुनासिब अंडरस्टैंडिंग है वोकैबुलरी को लेके, लिसनिंग को लेके, राइटिंग को लेके, स्पीकिंग को लेके, तो यू कैन इजीली गेट मोर देन 6 बैंड्स. अब अगर आइल्स के बारे में अपनी बात को थोड़ा सा मैं और स्ट्रेच करूं, स्टूडेंट्स, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे, द स्टूडेंट्स हु आर एंगेज्ड इन IELTS, and currently there are 60 to 70 students who are studying from me in my supervision. उनकी हफ्ते में कोई 2-3 दिन क्लास नहीं होती है शुमाज हमारे प्लेटफॉर्म में. They study 7 days in a week from me because they do not have time. उनके पास डिग्री है, उनके पास इंटेंशंस हैं, उनके पास अपनी कंसल्टेंसी और आपकी कोशिशों की वजह से उनकी केसेस तैयार हैं. आप उनको ये कह रहे हैं शुमाज कि वी जस्ट नीड 6 बैंड्स एंड 6.5 बैंड्स इन योर आइल्स सर्टिफिकेट एंड यू आर रेडी टू गो. प्रोफिशिएंसी की जरूरत होती है. यस, एंड यू आर रेडी टू गो. तो हमारे पास जब कोई भी आइल्स के लिए आता है तो हम डायरेक्टली उसको कोई मल्टीमीडिया क्लासेस के सेशंस, हम उसको लॉन्ग थ्रू कोई पीडीएफ, हम उसको कोई ड्रिलिंग, ये सारी चीजें नहीं कराते. हम उनको सिंपल ये बताते हैं कि भाई इन रीडिंग देयर आर 40 क्वेश्चंस एंड इफ यू रियली वांट टू क्वालिफाई फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा you need to get 32 in my class. Listening में 4 sections हैं, 40 questions हैं, you need to score 30, 32, 33 in that. Speaking 17 to 18 minutes का टेस्ट है. और हम यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे AEOs और ब्रिटिश काउंसिल के जो वेन्यूज, सारे हमारे सुनने वालों को भी ये पता होना चाहिए कि इन कराची देयर आर 3 to 4 venues which are more prominent for the IELTS venues. Beach Luxury Hotel, PC Hotel, Marriott Hotel. In these kind of places, students, you are going to go once you are going to get your assignments done, once you are going to get your dates from AU and British Council. आपको उन जगहों पे जाना होता है. और हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारी स्टडी खाली शुमास क्लासेस की हद तक नहीं होती. मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके मूव कर रहा होता हूँ डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट सेमिनार्स में, जो बहुत सारे ऑफिसेज एंड कंसल्टेंसीज इन द पाकिस्तान, इन कराची, दे ऑर्गेनाइज मॉक टेस्ट. मैं अपने स्टूडेंट्स को ये गो थ्रू करता हूँ कि जाओ भाई मैरियट होटल में बैठो, जाके जाओ भाई पीसी होटल में बैठ के आज रीडिंग टेस्ट देकर आओ, जरा तैयार होके जाओ और देखो कि वो वक्त कब होगा कि जब तुम रियल टेस्ट के लिए अपने जा रहे होगे एंड यू विल बी अपेयरिंग इन योर स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग. और साथ साथ हम अपने व्यूअर्स को ये भी एजुकेट करते हुए चले सुमार कि जब आप अपना आइल्स का टेस्ट बुक कराते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज योर एस, आपके स्पीकिंग पहले होता है, और एक दिन के वक्त के बाद आपका LRW, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसके लिए आपको 2 hours 50 minutes एक ही जगह पे बैठना होता है. Yes, you're not allowed to move your space. और उस जगह पे you're not allowed to pee or poop either. Exactly, that's what I was about to say. अपने स्टूडेंट्स को ये बात क्लैरिफाई मैं करता हूँ. I have been through that. Yeah. Trust me, and it's not funny. Shumaz, you're absolutely right. What I tell my students कि स्पीकिंग में तुम तैयार होके जाओ भाई.
यू हैव टू डू फॉर्मल ड्रेसिंग। लेकिन जब लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग में जाओ तो कोई पाय और निहारी खा के, लस्सी पी के तुम अगर टेस्ट में बैठोगे तो फिर तुम ये देख लो कि स्टूडेंट तुम्हें 2 घंटे यूं बैठना है एक कुर्सी के ऊपर, और तुम्हें रीडिंग भी करना है, तुम्हें लिसनिंग भी करना है, तुम्हें राइटिंग भी करना है। तो जब इनके पेट में से आवाजें आएंगी तो हाउ विल बी दे able to sit in their reading, writing and listening? तो Absolutely. मेरी तरफ से उनको गाइडेंस रीडिंग की, वोकैबुलरी की, मार्क वर्ड्स की, शॉर्ट वर्ड्स की, ये सब तो होती है जो हमारी क्लासेस में होती है। अच्छा, एक इत्तेफाक से, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे इस चीज से याद आ गया। हमारे एक मीटिंग थी मेरी, काफी लाइक इस बात को 4-5 साल हो गए। बीच लग्जरी होटल में एक इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, उनसे मीटिंग थी। अब वो इत्तेफाक से कुछ 4-4:30 बजे की मीटिंग थी, हम 15 मिनट पहले पहुंच गए, तो हमने थोड़ा रेस्ट रूम वगैरह सोचना इस्तेमाल करने का सोचा। सैटरडे का दिन था, एईओ वालों का आयल्स हो रहा था वहां पे। हम रेस्ट रूम में गए, ऐसा लग रहा था कि रेस्ट रूम में क्या फ्री कुछ बट रहा है ना। पता ही चला कि वो बेचारे वो 2.5 घंटा 2 घंटा 50 मिनट जैसे आपने तस्करा किया, वो सारा उधर बैठ के वो सारा जो पूरा फ्लो था ना, पूरा जम्मे गफीर का, वो पूरा रेस्ट रूम्स पे कब्जा हुआ था। एंड इट वाज लुकिंग लाइक अ स्टूपिड पब्लिक टॉयलेट, एंड इतना रश था। तो ये जो सर बात कह रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यू हैव टू सिट एंड mock tests, as you said, I think is a very good way. और मैं भी काउंसिल करता हूँ, मेरी टीम के मेंबर्स काउंसिल करते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं रिगार्डलेस आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, स्टूडेंट्स यू आर ओपन टू गो एंड एक्सप्लोर। एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस गाय, people, this is what I like about this guy. He is teaching it, those are his personal students, and at the end of the day he is saying you are free to go, just experience it. आप डिफरेंट जगह पे जाएं, and that is it requires, because at the end of the day is a business for everybody. तो वो इशू नहीं है, but it requires a lot of courage in this market to do it. So I greatly appreciate it, Sir Azan, and I really love it. अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अजान भाई मेरे पास ये है कि क्योंकि मैंने आपको पढ़ाते हुए देखा है काफी ज्यादा, और आपके सेंटर पे एक ऐसी विजिट करने का एक दफा इत्तेफाक हुआ, सो बिकॉज दैट टच्ड मी अ लॉट। और क्योंकि मैं इस चीज से गुजरता हूँ डेली, और मैंने ये चीज नोटिस की थी, और आपने मुझे उसके बाद ये कहा था कि चलो छोड़ो इस बात को, लेट्स नॉट डिस्कस इट। एक एप्लीकेंट, एक स्टूडेंट आपके पास आया था जिसका कोई फी का इशू था, और आपने बोला ठीक है, I'll handle it, you don't worry about it. आपके पास जो प्रोपोर्शनैलिटी है, मैंने कभी आपसे ये सवाल नहीं किया उस दिन के बाद से, बट नाउ आई एम डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एज वेल। आई कैन सेंस इट दैट यू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट फाइनेंशियली साउंड, क्योंकि आप अदर देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स जो बाहर जाने वाले बच्चे हैं, आप काफी स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट भी करते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताएं इफ यू आर कंफर्टेबल। इसमें शुमास बात कुछ इस तरीके से है कि जो शख्स दलदल से निकलता है उसको दलदल की गहराई का अंदाजा होता है। So as I said in the starting of my podcast, that the person who has faced the poverty, the person who has faced the bad times, who have faced the rainy days in his life, तो मुझे अंदाजा है उस बच्चे की उम्मीदों का, मुझे अंदाजा है उस बाप और माँ की उम्मीदों का, जो अपने बच्चे को एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे माहौल में देखना चाहता है, लेकिन उसके पास इतनी वेल्थ नहीं है कि ही कैन इंडल्ज हिज चाइल्ड टू एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स, और फिर उसमें आइल्स का एक खर्चा, फिर कंसल्टेंसी का एक सारा सिनेरियो। तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे, यस आई एम अ पर्सन, यस आई एम अ टीचर, लेकिन यस आई एम एन इमोशनल पर्सन, और ये मेरी कमजोरी है जो मैं ड्यूरिंग कैमरा बता रहा हूँ आप पे, कि इमोशंस आर माय वीकनेस। कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई मेरा सर्कल का शख्स ये कह दे कि सर आई हैव दैट विल, आई हैव दैट फायर इन मी दैट आई कैन डू समथिंग फॉर माय फैमिली एंड आई कैन डू समथिंग फॉर यू, तो मैं चाहता हूं कि वो शख्स मुझसे इल्म हासिल करे, वो मुझसे अंग्रेजी भी पढ़े फ्रॉम स्क्रैच, वो मुझसे आइल्स भी करे, और हम उसको अपने प्लेटफॉर्म से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और डिफरेंट कंट्रीज पहुंचाते हुए आए, उसके फाइनेंशियल क्राइटेरिया को ओवरलुक करके, उसको जांच पड़ताल करते हुए हम उसको तरक्की की राह चढ़ाएं, और उससे बोलें कि भाई कयामत के दिन, आखिरत के दिन याद रखना कि तुम्हारे उस्ताद ने तुमसे क्या काम किया था और तुमको किस जगह पे पहुंचाया। ये मेरा बिलीफ है, और इस पे मेरे ख्याल से मैंने अपने आपके सवाल का जवाब दे दिया है ढके छुपे अल्फाजों में। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मैं बिफोर वाइंडिंग अप दिस पॉडकास्ट,
इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर लाइक क्योंकि रिक्वायरमेंट है वो बाहर अप्लाई करने के लिए, वेदर यूएस हो, यूनाइटेड किंगडम हो, कहीं पे भी हो, आप मुझे ये थोड़ा सा इलैबोरेट करें कि स्टूडेंट्स के लिए पहले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की तरफ जाना ज़रूरी है या पहले इंग्लिश इटसेल्फ उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, एक कंपल्शन है, एक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एग्जाम जो मैंने समझा है अब तक, कभी भी आप उसको क्लियर नहीं कर सकते अगर आपको लैंग्वेज आती ही ना हो। तो आपकी नज़र में क्या इसका पाथवे होना चाहिए, थोड़ा सा अगर इस पे हाईलाइट कर Shumas, सकते। what I personally believe that if you really want to upgrade yourself, अगर किसी भी शख्स को अपने आप को अपग्रेड करना है, वो सबसे पहले अपनी लुक, अपनी पर्सनालिटी, अपनी कम्युनिकेशन, अपने अंदर के मवाद को इम्प्रूव करेगा. एंड इंग्लिश इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. इंग्लिश इज अ मोड ऑफ दैट polishment in your personality which can put stars in your personality, जो आपकी पर्सनैलिटी पे स्टार्स लगाती है. तो मैं ये नहीं समझता कि खाली इंग्लिश बोलना काफ़ी है. अंग्रेज़ी को अपनी खून की एक एक बूंद में शामिल करना है. अंग्रेज़ी को अपनी बॉडी लैंग्वेज में अडॉप्ट करना है. अंग्रेज़ी स्टाइल को अपनाना है. दैट कैन मेक यू अ परफेक्ट कम्युनिकेटर. और उस स्टाइल के साथ, उस बॉडी लैंग्वेज के साथ, यस, पीपल विल लाफ एट यू. This is my experience when suddenly you will start speaking English in my classes, and as I force my students कि तुम्हें अब सड़क पे भी चल रहे हो तो अंग्रेजी में सोचना है. तुम अगर अपने माँ बाप से भी बात करते हो जो अंग्रेजी में गुफ्तगू नहीं कर सकते, उनसे भी इंग्लिश बोलनी है, तो योर पीपल और द पीपल हु आर सराउंडेड विद यू, दे आर गोइंग टू मेक फन ऑफ यू. वो लोग बोलेंगे उस लड़की को कि ये पहले तो सिर्फ कमर टेढ़ी करती थी तस्वीर खिंचाने के लिए, अब तो ये मुंह भी टेढ़ा करती हैं, बोलने और के ये लिए कहाँ पढ़ रही हैं जो अब ये खा, फा, छा, खो, क्रॉस, पार्क ये जगह बोल रही हैं. और दूसरी जानिब जो हमारी पाकिस्तानी इंग्लिश है, जुमान, जो मैं समझता हूँ कि एक वीक प्लेटफॉर्म पे चल रही है, और हमारे सोसाइटी में ऐसे वर्ड्स बहुत आम हैं जो मैं अपने स्टूडेंट से सुनता हूँ. सर काल आ रही है, सर बाल फेंक दें, पार्क चले, स्क्रीन पे मैच लगा है, आइए देखते हैं. तो ये वो लूप होल्स हैं जो हमें सोसाइटी के मेंबर्स के अंदर हैं. देखें व्यूअर्स, आई पर्सनली बिलीव दैट बीइंग अ कैंडिडेट, इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड यू हैव टू चेंज योर माउथ मसल्स. You have to change your mouth muscles in order to speak English comfortably. अब होता क्या है शुमास कि हमारे लोग उर्दू की पटरी पे इंग्लिश की रेलगाड़ी चलाते हैं, तो वो उर्दू के साउंड इंग्लिश में ऐड करते हैं, और वो अपने आप को एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर समझते हैं ये इंग्लिश बोल के कि my name is Ali, I wake up at 8 o'clock, then I go to bank. I'm sorry, this is not enough for becoming a person. Yeah, yes, उलटनी है, exactly, बिल्कुल ऐसे. तो नहीं फिर I hear you sir. और मेरा ख्याल है this is a very very interesting point. इसमें एक चीज और है जो मैं समझता हूँ, यहाँ से बाहर कभी भी अगर आप, क्योंकि बेस लाइन अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं इन द वे द लैंग्वेज इज स्पोकन इन दैट एरिया, इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश हो गई, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन इंग्लिश ऑफ कोर्स. तो अगर आप अपने बिल्कुल अपने लहजे में बोल रहे हैं, तमिलियन लहजे में कोई इंडियन बंदा बोल रहा है तमिल एक्सेंट के साथ, वो इट इज नॉट दैट फेवरेबल. अगर आप अपना प्रोनाउंसिएशन और लैंग्वेज को बेहतर कर लें, फिर आपको बोलते बोलते चीज आ जाती है. दिस इज व्हाट आई हैव सीन, एंड आई थिंक अभी हम बिहाइंड द सीन्स यही डिस्कस कर रहे थे उस चीज को. इसके कनेक्टिंग मैं एक फाइनल क्वेश्चन की तरफ जाना चाहूंगा. जैसे आपने मॉक टेस्ट को कवर किया, सारे बैकग्राउंड को कवर किया, मुझे ये बताएं कि हमारे पास अभी जो स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं अपना प्रोसेस इनिशिएट करूंगा, या मैंने, क्योंकि हमारी ऑडियंस हर किस्म की है, वो बच्चा भी है जो बाहर जाने का सोच रहा है, वो एप्लीकेंट भी है जो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने का सोच रहा है, वो एप्लीकेंट भी है जो अभी तक आगे कुछ प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अचीव करने का सोच रहा है. तो इन सब के लिए आपकी कोई ओवरऑल लाइफ इम्प्रूवमेंट टिप कोई होगी, या कोई आप ऐसी चीज बताना चाहें कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द इनिशियल थिंग, एंड दिस इज हाउ यू कैन सक्सीड? Shumaz, in my opinion, there is a very short and very clear pathway for all the students and for all the people who want to change their life, they want to learn English and they want to go. और वो pathway सिर्फ 3 months का है.
That guideline is of only 3 months. That person has to start from English language. कि सबसे पहले आइल्स के तालाब में कूदने से पहले वो अपने आप को थोड़ा सा तैराकी की स्किल सीख जाए. वो आइल्स की स्पीकिंग, रीडिंग और लिसनिंग करने से पहले इंग्लिश को अपनी बॉडी लैंग्वेज में समाना और इंग्लिश के कुछ अल्फाज जो हमारे एक मीडियोकर और एक बिगनर लेवल स्पीकर को मुश्किल करते हैं. सर ये आई, वी, यू, दे तो सबको समझ आता है, लेकिन हमारे लोग, जब मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन ग्रामर देखता हूं तो बहुत सारे हमारे लोग यहां फंसते हैं. सर ये डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव बीन, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट कहां लगाएं. तो अगर स्टूडेंट को इन हेल्पिंग वर्ब्स और इन मॉरल वर्ब्स की एक शॉर्ट कम्युनिकेशन, एक शॉर्ट तरजीह इनके जहन में है कि वेयर टू यूज दैट. यस, इंग्लिश खाली नाम, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का है. साथ साथ में ये बात भी ऐड कर दूं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर कि जो शख्स आइल्स की नियत कर रहा है वो पहले आइल्स नहीं करेगा, वो 3 मंथ का फॉलो पैटर्न करेगा. 1 मंथ वो इंग्लिश पढ़ेगा हमसे और उस 1 मंथ में मैं उस शख्स को इतनी तैराकी स्किल सिखा देता हूं कि जब वो आइल्स के तालाब में कूदेगा तो उसका दम नहीं घुटेगा, वो मरेगा नहीं. इन शॉर्ट वो फेल नहीं होगा, वो हाथ पांव चलाएगा, वो पानी के ऊपर रहेगा, क्योंकि उसको वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स, जुमला बनाना, जुमला लिखना और इंग्लिश का जुमला बोलना आता है. स्टूडेंट जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O है, सर अजान के नजदीक इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने का फॉर्मूला S+V+O है. मैं तुम्हें इस पूरे फॉर्मूले पे इंग्लिश लैंग्वेज बोलना, लिखना, पढ़ना और रीड करना सिखा सकता हूं. और यही फिर हमारे प्लेटफॉर्म बनते हैं आइल्स की रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग को लेके. और बाकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स भी इसी के. एग्जैक्टली. तो इंग्लिश इटसेल्फ इज एन एंटिटी. जब आप वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर एब्जॉर्व करते हो तो आपके लिए सक्सेस भी कुछ नहीं है, आइल्स भी कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन भी कुछ नहीं है, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आपके लिए कुछ नहीं है. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स व्हिच यू हैव ऑटोमेटिकली. आपको अपने आप को चेंज करना है. आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जब आप सामने खड़े हों और आपके सामने 20 लड़के और 20 लड़कियां बैठे हों और मेरा स्टूडेंट अगर कराची के ऊपर बात कर रहा है तो उसको पता हो कि उसकी ग्रामर, उसका आई कांटेक्ट, उसका body language, उसकी accent and pronunciation up to the mark हो. That are the major things which I keep an eye on my student, that they have to get perfect in that. और जब उसको इतना आ जाता है तो IELTS उसके लिए कुछ नहीं है. It is just a piece of a cake. Yes, remember that the people who say that IELTS is hard, it is not hard. You are making it hard by making it a big proportion on your mind कि IELTS करने के लिए तो सर बड़ा मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलनी होती है, बड़ी परफेक्शन से इंग्लिश बोलनी होती है, बड़ी कोई डिक्शंस चाहिए होती हैं. It's not like that. आप भी IELTS कर सकते हैं, आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं अगर आपके पास करेक्ट पाथवे है. In our English language classes, we never teach students Shumas कि बहुत सारे टीचर नाउन, प्रोनाउन और वर्ब पे लगे हुए. अरे भाई उन्होंने वो स्कूल लाइफ में पढ़ लिए, तुम उनको लेक्सिकल वे में लेकर आओ. तुम उनको सेंटेंसेस, पोजेशंस, कॉन्ट्रैक्शंस, एक्टिव, पैसिव, कंडीशनल्स, कम्युनिकेशन, फ्रेजेस, इनके ऊपर लेकर आओ. नाउन, प्रोनाउन से आइल्स पास नहीं होता शुमार. That's what I personally believe, right? No, that's absolutely right. And viewers, that brings me and us and everybody here to the end of this podcast. And it was lovely having you, Azan Bhai. And for everyone, Sir Azan, his centers are located in Gulberg and Karachi. Gulberg and Gulshan Iqbal in Karachi. He provides online services as well to all the people who want to study English language or any English proficiency test preparation for that matter. आप इनसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं. इनकी जो डिटेल्स हैं वो कैप्शन में डली हुई हैं. और बाकी इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो, our team is there to help. And it was again, sir, it was very nice having a discussion with you, and thank you so much. और दोबारा हम इस podcast को करेंगे, but with different material and different. For sure, inshallah. I enjoyed it with you. I enjoyed a lot. Thank you so much. Thank you so much. Thank you sir. so much. And look forward to seeing you again. Inshallah. Thank you.